Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, we have started our unit number 7 and the name is Applications of AI. And today we will discuss the main topic, real world applications of AI and its subtopic, recommendation systems. So students, we are going to start with the recommendation systems. As you all know that it's the application of AI that gives the user suggestions based on their life and past actions. As we discussed in our unit number 6 about the machine learning, it's just like the machine learning. Like आप लोगों के पास्ट हिस्ट्री के मुताबिक आपको AI जो है वो आपको नई चीज़ें जो फराहम करता है, आपकी पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट हिस्ट्री के मुताबिक ये जो सिस्टम्स होते हैं, ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, दिस इज कॉल्ड द रिकमेंडेशन सिस्टम्स. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स, देन in online shopping website, if someone looks at the shopping bags and the other school bags and any other shopping material like e-commerce materials हैं, जितनी भी चीज़ें आप लोग देख लें, अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, like अगर हम we are girls, so if you are talking about the skin care products, then you can choose the online website Genform and Organic Travelers. And if you open the Organic Travelers, so Organic Travelers will give you the suggestions ऑन योर पास्ट हिस्ट्री. लाइक अगर आप लोगों ने जो है वो आज से 1 मंथ पहले स्किन केयर के अंदर और ऑर्गेनिक ट्रैवलर से आपने फेस वॉश मंगवाया था या आप लोगों ने सीरम मंगवाया था, तो अब क्या होगा अगर आप आज मंगवाना चाह रहे हैं, तो वो आपको आपकी पास्ट हिस्ट्री से रिलेट करते हुए वो चीज़ें आपके इंटरफेस पे शो करेगा जो आप लोगों ने पहले ऑर्डर की थी. देन यू विल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. If you see recommendation systems in education, then you can say that a website can suggest helpful videos or articles based on a student's learning history. Like if you want to take some notes from online, then you will come to the website which is Ilm Ki Duniya. So here you can choose your notes, but this website give you the notes according to your past history. Like आपने जो है वो आज से 2 महीने पहले वो वेबसाइट यूज़ किया और आपने बायो के नोट्स निकाले हैं या आपने कंप्यूटर साइंस के नोट्स निकाले हैं, तो वो वेबसाइट आपको शुरू के इंटरफेस के अंदर वही वाले नोट्स प्रोवाइड करेगी. देन यू विल कम टू द नेक्स्ट सिलेक्शन पॉइंट कि आपने वहाँ से जो है वो कौन से नोट्स जो है वो हासिल करना है. So students, if you are talking about the recommendation systems improvement, then you can say that recommendation system improve the user experience by making the content more personal and useful. Like these systems must be used carefully to protect the privacy. Like अगर आप लोग जो है वो इन systems को use कर रहे होते हैं, you are responsible to use it ethically and protect privacy and avoid showing the same types of content again and again. Here you can see a recommendation systems example. Like एक user है जो कि कुछ चीज़ें देखता है, like कोई प्रोडक्ट्स देख रहा है किसी वेबसाइट के ऊपर, उसने देखी, अब उसके बाद जब वो दोबारा से उस वेबसाइट पे जाएगा, then this website show you the similar products according to your past history. Here is another example, like user 1 है और user 2 है. user 1 ने जो है एक वीडियो लाइक की और उसने शेयर कर दी user 2 को. लाइक ऑन इंस्टाग्राम यू आर शेयरिंग योर रील्स विद योर फ्रेंड्स और द फैमिली मेम्बर्स, तो आपकी फीड में क्या आएगा, उसी तरह की रील्स और उसी तरह की पोस्ट आना शुरू हो जाएंगी जो आप लोगों ने पहले देखी होंगी. लाइक यू आर सेइंग द मेकअप प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यू आर सेंडिंग दीज प्रोडक्ट्स टू योर फ्रेंड एज अ रील, तो फिर उस यूज़र के पास भी उसी तरह की रील्स आना शुरू हो जाएंगी जिस तरह की आपने उसको शेयर किया, क्योंकि उसकी फीड भी उसी मुताबिक सेट हो जाएगी और वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट हिस्ट्री के मुताबिक क्या करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा आइटम्स. देन हियर इज एन अनदर स्लाइड ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम. नाउ हियर इज अ स्लाइड ऑफ नेटफ्लिक्स. लाइक नेटफ्लिक्स के ऊपर आपने कोई मूवी सर्च की है, तो आप लोगों की मूवी जो है जो आप भी सर्च कर रहे हैं, अब वो जो कंटेंट आपके सामने ओपन हुआ है वो किस वजह से ओपन हुआ है, वो कंटेंट आपको वो वाला ही क्यों शो हो रहा है, बिकॉज यू हैव यूज्ड दिस कंटेंट लास्ट नाइट या लास्ट डे. ठीक है, उसके मुताबिक आपके पास्ट एक्सपीरियंस को और हिस्ट्री को सामने रखते हुए आपके नेटफ्लिक्स पे भी उसी तरह की वीडियोस, उसी तरह की फिल्म्स आना शुरू हो जाएंगी जो कि आप देखना पसंद कर रहे थे अपनी पास्ट हिस्ट्री के मुताबिक. So student, here is a tidbit box where you can see that like आप लोग अगर YouTube की बात करते हैं तो आप लोगों के पास हिस्ट्री के अंदर और जो भी चीज़ें आप लोगों ने लाइक की होती हैं वो साइड पे बॉक्स में आ रही होती हैं और वही लाइक्ड वीडियो के अकॉर्डिंग ही आपके इंटरफेस के ऊपर वो चीज़ें चल रही होती हैं. जैसे कि मैंने जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड एक लेक्चर देखा था और मैंने उसको लाइक कर दिया. अब जब मैं दोबारा से YouTube को ऑन करूँगी, दिस YouTube सर्वर विल गिव यू द सजेशंस अकॉर्डिंग टू योर लाइक्ड वीडियोज़.
So here is an activity that you have to do on your own. So guess my choice simulation का इसका नाम है एक्टिविटी का. तो यहाँ पे हर स्टूडेंट ने जो है वो अपनी फेवरेट किस्म की वीडियो और आइटम को पिक करना है. टीचर जो होगी वो डिफरेंट चॉइसेस दे देगी कि कॉमेडी वीडियो देख लो या स्पोर्ट्स या कुकिंग. फिर उसकी पिछली प्रीवियस चॉइसेस पे बेस्ड करते हुए स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट आइटम एक दूसरे को दिखाएगा, एक दूसरे को रिकमेंड करेगा. फिर इस तरह से अगर जब आप ये करेंगे ना, आप लोग जो है वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए जब वो चीज़ें आप लोग वीडियोस आइटम्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको अच्छे से रियलाइज होगा कि जब मैं कुकिंग बेस पे कर रही थी लास्ट टाइम वीडियो, तो फिर मैं उससे रिलेटेड कौन कौन सी वीडियो जो है वो नेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ. तो इसी तरह से जो है वो अगर आप लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट बिहेवियर के मुताबिक AI को मिमिक कर सकते हैं कि वो किस तरह से जो है वो इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करेगा और आप लोगों को क्या क्या सजेस्ट करेगा. So it's all about today's lecture and you have to learn this lecture as well. So okay students, take care. Allah Hafiz.